Assalamu alaikum students. Bismillahirrahmanirrahim. Let's start our lecture number 5. But before that, let's recall what we did in the last lecture. In the last lecture, we discussed about this equal employment opportunity, and then we discussed about a few rules through which you can determine if the organization is discriminating against somebody or not. And then we talked about 3 defenses which are available to organization if they are being charged for equal employment opportunity. And then we talked about this comparable worth and glass ceiling concept. So what actually we were discussing was that there are certain rules, certain ways that you can use and check if the organization is discriminating against the employees or not, in which the first was the 4/5 rule, which actually meant that if you see that there are let's suppose 100 employees in an organization and 80 of them are from the majority background and 20% of them are from the minority side. So if this is the ratio and you've already decided it, then you are going to say that there is no discrimination and the organization is doing fine. Then there was this another policy, restricted policy, which meant that if the organization is restricting, let's suppose we talked about the example that if the organization is firing the 40 years old man and instead of that hiring 2 young men or 1 young person, that is one of the kinds of restrictive policy that organization is restricting its employees. If that is there, then we are going to say that the organization is discriminating. And then we talked about this geographical comparison, that you'll have to see that what kind of people are living in that geographical area. If the ratio of the minority and majority of that area matches with the ratio of the kind of employees in the organization, then it is fine. Otherwise, if it doesn't match, then you can say that there might be discrimination in the organization. And then we talked about this McDonnell-Douglas test, which had 4 steps, that if somebody has sued the organization that उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुई है, तो उसके लिए 4 स्टेप हैं. यू हैव टू सी कि वो प्रोटेक्टेड ग्रुप का मेंबर है, फिर उसको जो है वो क्वालिफाइड है, फिर उसको रिजेक्ट कर दिया है, और रिजेक्ट करने के बाद द ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यू टू हायर समबडी ऑफ द सेम क्वालिफिकेशन. तो ये हमें टेस्ट बता देता है कि वाकई डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉलो नहीं हो रही या हो रही है. देन वी टॉक्ड अबाउट दीज 3 डिफेंसेस कि कुछ बिजनेस की रिक्वायरमेंट होती है कि आप कुछ लोगों को हायर नहीं कर सकते बिजनेस नेसेसिटी के नाम से. लेट्स सपोज एक बिजनेस की नेसेसिटी है कि उसको ऐसा एक इंसान हायर करना है जिसको 4 to 5 लैंग्वेजेस आती हों, तो वो उस बेस पे अगर आप हायरिंग करते हैं तो इट्स नॉट डिस्क्रिमिनेशन, इट इज एक्चुअली योर बिजनेस नेसेसिटी दैट यू हैव टू हायर somebody like that. Then there was bona fide occupation qualification कि there are certain occupations which require a certain level of qualification which cannot be acquired by the other person or by the other gender. And we talked about कि जिस तरह washroom tenants होते हैं या prison guards होते हैं, इनके लिए ज़रूरत होती है कि you have to be very specific in terms of gender. Then we talked about this seniority system कि अगर कोई किसी को आप promotion देते हैं and दूसरे किसी को same level पे promotion नहीं देते, तो you can justify that the person who got promoted was a senior and working with the organization from a long time. That is why you preferred that person. Then we talked about this comparable worth and glass ceiling. Comparable worth में हमने कहा कि same level of job को same pay करना चाहिए, regardless if the female is doing it and the other job is being done by a male. Then we talked about this glass ceiling कि अगर आपने कुछ organization में there are invisible barriers that women and the minority group cannot go beyond this barrier, cannot go to the top positions. तो ये ग्लास सीलिंग का हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में. अब आज के लेक्चर में हमारा जो टॉपिक है दैट इज एम्प्लॉय राइट्स एंड कम्युनिकेशन. That before we start talking about recruitment, selection, compensation, training and development, let's see that what the organization should do to provide its employees their basic rights and what kind of communication channels should be there in the organization so the HR can work effectively and efficiently. So first of all, in terms of importance, employees' rights have become one of the most important
ह्यूमन रिसोर्स इश्यूज। आजकल एम्प्लॉयज के राइट्स कितने उनको दे सकते हैं, कितने राइट्स उनके आपने मीट करने ऑर्गेनाइजेशन ने, इट हैज बिकम अ वेरी हॉट एंड इंपॉर्टेंट इशू। अब लॉज इसके बारे में बहुत सारे बन चुके हैं, जाके हम आगे डिस्कस करते हैं। द लॉज हैव इंक्रीजिंगली कंस्ट्रेन्ड एम्प्लॉयर्स एक्शंस, जो बंदा हायर कर रहा है उसके एक्शंस को लॉ ने बड़ा लिमिटेड कर दिया है, दैट ही कैन नॉट डू वट एवर ही वांट्स टू डू। तो वो भी एम्प्लॉय राइट्स के टर्म्स में हमें देखना है क्या होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ फ्यू बेसिक राइट्स ऑफ एम्प्लॉयज। बेसिक राइट ऑफ एम्प्लॉयज का मतलब ये है कि एज अ ह्यूमन बीइंग उसके सर्टन राइट्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि उसको प्रोवाइड करे, अदरवाइज यू कैन नॉट रिटेन वेरी गुड पीपल, अदरवाइज यू माइट नॉट बी एबल टू इवन अट्रैक्ट वेरी गुड पीपल, बिकॉज आपकी ऑर्गेनाइजेशन अगर बेसिक राइट्स का ख्याल कर रही है, इंसानों का ख्याल कर रही है, अपने एम्प्लॉयज का ख्याल कर रही है, देन पीपल आर गोइंग टू वर्क फॉर दैट ऑर्गेनाइजेशन। Otherwise, people will start leaving. People will start going to the other organization which are providing better opportunities. तो इसमें let's suppose a few rights are there that sick leave, कि अगर किसी इंसान को कोई बीमारी है या उसको प्रॉब्लम कोई है ऐसा, तो उसको छुट्टी चाहिए होती है। तो यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक कि साल में कितनी छुट्टियां आपने उसके लिए अलहदा करनी है। यूजुअली पीपल यूज इट लाइक 20, 24, 30 कि मैक्सिमम इतनी छुट्टियां आप साल में कर सकते हैं, एंड दे आर कंसिडर्ड एज सिक लीव। उसमें फिर नेक्स्ट आ जाता है कि उसमें पेमेंट देंगे या नहीं देंगे, बट द एम्प्लॉयर शुड गिव सम सिक लीव्स। देन पब्लिक हॉलीडेज, आपको पता है जो पब्लिक हॉलीडेज होते हैं, हमारे इवेंट्स होते हैं, ईद है, देन देर आर सर्टन हॉलीडेज ऑफ स्टेट लेवल, इंडिपेंडेंस डे और ये सारी लीव्स ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि अपने एम्प्लॉयज को प्रोवाइड करे, बिकॉज दे आर बीइंग enforced by the government. गवर्नमेंट कहती है गैजेटेड हॉलीडेज होनी चाहिए, तो ऑर्गेनाइजेशन को देनी पड़ेंगी। देन वीकली हॉलीडेज, वीकली हॉलीडेज का मतलब ये है कि यू कैन नॉट आस्क समबडी टू वर्क फॉर यू फॉर ऑल 7 days. यू हैव टू गिव 1 or 2 holidays एज पर द लॉ सेज। एक आधी छुट्टी आपको उसको इसलिए देनी पड़ेगी कि दैट ही शुड गेट सम टाइम ऑफ, ही शुड बी रिलैक्स्ड टू वर्क फॉर अनदर 6 or 5 days. वीकली हॉलीडेज देन मिनिमम वेज, कि गवर्नमेंट ने डिफरेंट स्टेट्स, डिफरेंट कंट्रीज की गवर्नमेंट ने डिफरेंट बार लगाई होती है, दैट यू कैन नॉट पे समबडी लेट्स सपोज लेस देन 8,000 रुपीज। अगर ये बार लगी हुई है तो देन यू कैन नॉट पे एनीबडी लेस देन 8,000 रुपीज। हायर यस, बट मिनिमम वेज इट कैन नॉट बी बिलो दैट लेवल। तो ये हमें देखना पड़ता है। इट ऑल्सो बिकम्स इन द एम्प्लॉयज बेसिक राइट्स। नाउ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ऑर्गेनाइजेशन को ये कोशिश करनी चाहिए कि ड्रग फ्री इन्वायरमेंट प्रोवाइड करे अपने एम्प्लॉयज को। वो किस तरह से कर सकता है? एक तो सबसे ज्यादा ये बात है कि इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोवाइड अ ड्रग फ्री इन्वायरमेंट, एंड कवर्ड ऑर्गेनाइजेशंस होनी चाहिए। कवर्ड ऑर्गेनाइजेशंस का मतलब ये है कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसके पास हेल्थ एंड सेफ्टी की सारी पॉलिसीज इंप्लीमेंट हो रही हों, एंड इट इज कवर्ड फ्रॉम ऑल द बैड थिंग्स हेल्थ वाइज एंड अदरवाइज। सो उसके लिए इनको चाहिए कि ये अवेयरनेस प्रोग्राम्स करें, लोगों को ट्रेनिंग्स दें, एंड अगर कोई फिर भी ड्रग है उसमें डील करता है, उसको ड्रग एडिक्ट है या कुछ है, तो स्टार्ट काउंसलिंग हिम या कुछ इस तरीके से करें, या फिर एंड में क्या है कि आप उसको फायर कर दें, बिकॉज ये दूसरे लोगों को भी डिस्टर्ब करता है। अगर कोई एक बंदा एडिक्ट है तो इट इज गोइंग टू अफेक्ट ऑल द एम्प्लॉइज। सो उसके लिए जरूरी है ड्रग फ्री पॉलिसीज होनी चाहिए हमारे पास। उसमें क्या क्या होना चाहिए? व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ द एम्प्लॉइज मस्ट बी टोल्ड एक्सप्लिसिटली, बड़ा ओपनली बताएं कि क्या आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है, विच मीन्स कि आप जगह जगह पे साइन लगा देते हैं, नो स्मोकिंग जोन, यू नॉट अलाउड टू स्मोक हेयर, इस तरह के डिफरेंट साइंस लगाएं ताकि लोगों को ये पता हो, एम्प्लॉइज को आपके पता हो दैट यू कैन नॉट स्मोक, यू कैन नॉट ड्रग अब्यूज इन द ऑर्गेनाइजेशन और इवन आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। तो एक तो आप ये जो है ना उनको बताएं कि आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रही है ऑर्गेनाइजेशन। देन पेनल्टीज फॉर इन्फ्रैक्शन ऑफ पॉलिसीज, अगर उन पॉलिसीज के कोई अगेंस्ट जाता है तो यू शुड इन समहाउ पनिश दैट पर्सन। पेनल्टीज डालें, फाइन की सूरत में, वेज कट की सूरत में, किसी सूरत में भी उनको पेनल्टी डालें ताकि वो अपने आप को ठीक करे और जो ऑर्गेनाइजेशन है ड्रग फ्री हो जाए। देन सब्सटेंस अब्यूज अवेयरनेस प्रोग्राम्स करें
कि जो स्मोकिंग के या जो सब्सटेंस अब्यूज़ है, ड्रग्स हैं, इनके जो नुकसान हैं जो इनकी ट्रेनिंग्स दिलवाएं और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करें कि इनसे क्या क्या नुकसान हेल्थ वाइज एंड अदरवाइज हो सकते हैं, ताकि लोग इसको कम से कम करें, बल्कि इनफैक्ट बिल्कुल ना करें. देन डिसेमिनेट टू ऑल एम्प्लॉयज. इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि एक एरिया को नहीं बताना, आपने पूरी ऑर्गेनाइजेशन के हर लेवल एंड हर डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय को ये चीज़ें बतानी है कि ड्रग फ्री इन्वायरमेंट हम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ताकि वो सारे जो हैं उसको प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट कर सकें. ड्रग टेस्टिंग, ये करंटली बहुत इशू बना हुआ है ऑर्गेनाइजेशंस के लिए कि ड्रग टेस्टिंग जो है, एक तरफ तो आपने ऑर्गेनाइजेशन को बचाना होता है, अपने एम्प्लॉयज का ख्याल करना होता है, दूसरी तरफ मे बी दैट यू आर हिटिंग द इंटेग्रिटी ऑफ डिफरेंट एम्प्लॉयज, कि शायद वो अच्छा ना समझें कि 3 महीने बाद उनका टेस्ट हो रहा है, हर 4 महीने बाद उनका ड्रग टेस्ट हो रहा है, किसी का पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो मे बी इट इज समहाउ इट इज रूड, लेकिन आपको फिर भी मेंटेन करना ऑर्गेनाइजेशन में. सो द सिवियरिटी ऑफ substance abuse in organizations has led to use of drug testing. Obviously, when people will not stop taking drugs और organization का सारे आपका जो environment है वो disturb हो रहा है, तो then you have to do these things. You have to ask employees to go through these tests, because उससे पता चलेगा कि कौन actually drug जो है addict है या नहीं है. Then drug testing of current employees, typically अगर आपको ये लगता है कि हाँ आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स आ गए, कोई है ड्रग एडिक्ट है, तो द फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज कि उसकी हेल्प करें. हेल्प कैसे कर सकते हैं? ऑफर रिहेबिलिटेशन टू दोज हु फेल, मतलब जो वो ड्रग टेस्ट पास नहीं करते उनको रिहेबिलिटेशन करवाएं, और इफ इट्स इन द पॉलिसी अपने खर्चे पे करवाएं या जिस तरीके से भी, बट उसको उस चीज से निकालें. देन कम्युनिकेट्स दैट ड्रग्स विल नॉट बी टॉलरेटेड. क्लियर पॉलिसी, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी दें उनको कि दीज ड्रग्स दे कैन नॉट बी टॉलरेटेड इन द ऑर्गेनाइजेशन. तो इस तरीके से आप इसको ड्रग्स को खत्म कर सकते हैं. देन ड्रग टेस्टिंग, अगेन द सेम इशू, शुड बी डन आफ्टर द जॉब ऑफर इज मेड. दोज हु फेल आर जनरली नो लॉन्गर कंसिडर्ड. कम्युनिकेटिंग क्लियर पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स. अब इस स्लाइड में मेनली वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जब आप सिलेक्शन के प्रोसेस के थ्रू गुजर रहे हो, विच वी आर गोइंग टू डू इन आवर नेक्स्ट लेक्चर्स, जब जॉब ऑफर आप लेटर देने लगे हैं, उसको देने के बाद या देने से पहले आप उसका ड्रग टेस्ट करवाएं. और अगर वो ड्रग टेस्ट फेल कर जाता है, विच मीन्स कि अगर वो ड्रग्स लेता है, एडिक्ट है, हैबिचुअल है, देन यू आर नॉट गोइंग टू कंसिडर दैट पर्सन एनी मोर फॉर द जॉब. आपके पास एक एप्लीकेंट आता है और वो एप्लीकेंट आपको, अदरवाइज ही इज फाइन, ही और शी इज परफेक्टली फाइन, आपके लिए वो जॉब और पर्सन मैच कर जाते हैं. आपने सिलेक्ट कर लिया, जॉब ऑफर दिया, उसके बाद यू शुड आस्क हिम टू गो थ्रू दीज ड्रग टेस्ट्स. अगर वो पास नहीं करता, मतलब ड्रग्स ले रहा है, तो देन यू आर नॉट गोइंग टू कंसिडर दैट पर्सन एनी मोर. उसको वहीं से खत्म कर दें एंड डोंट लेट दैट पर्सन कम इनटू द ऑर्गेनाइजेशन. और उसको बहुत क्लियरली पॉलिसीज एंड रूल्स अपने बता दें अबाउट द ड्रग्स, बिकॉज जब वो व्हेन ही और शी विल बिकम अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो फिर उसको करेक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और फिर वो जो दिस ड्रग हैबिट इट कैन अफेक्ट द अदर पीपल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो इस वजह से आप शुरू में उसको कंट्रोल कर लें. देन देयर आर ऑनेस्टी टेस्ट्स, कि बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको डिसिप्लिन के इश्यूज आ जाते हैं, थेफ्ट के इशू आ जाते हैं. तो उसके लिए बेहतर यह है कि आप ऐसा एनवायरनमेंट पैदा करें कि जिसमें डिसऑनेस्ट लोग जो हैं वो आपके पास हों ही ना. उसके लिए क्या है कि यू कीप ऑन डूइंग दीज ऑनेस्टी टेस्ट्स राइट फ्रॉम द सिलेक्शन टाइम, फ्रॉम द रिक्रूटमेंट टाइम. जब आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो उस वक्त आप ऑनेस्टी टेस्ट करें, और फिर कंटिन्यूसली टाइम टू टाइम यू कीप ऑन डूइंग देम, सो यू आइडेंटिफाई द ऑनेस्ट एंड द डिसऑनेस्ट पीपल इफ दे आर देयर, एंड यू कैन बिफोर टाइम यू कैन डू समथिंग अबाउट इट. तो उसमें वो कहता है कि रिटन टेस्ट टू गेट एप्लीकेंट्स टू रिवील इंफॉर्मेशन अबाउट देयर इंटेग्रिटी. कुछ टेस्ट होते हैं, डिजाइन किए होते हैं, पेपर पेंसिल टेस्ट, समटाइम्स ऑनलाइन टेस्ट, जो आपको बता देते हैं कि किस तरीके से जो है वो आंसर कर रहा है एक एम्प्लॉय या एक कैंडिडेट. दैट टेल्स यू कि वो डिसऑनेस्ट है या ऑनेस्ट है, या उसकी इंटेंशंस में कहीं डिसऑनेस्टी रिफ्लेक्ट हो रही है कि नहीं हो रही. तो इस तरह के टेस्ट करते हैं. देन यूज टू प्रिडिक्ट थेफ्ट एंड ड्रग यूज. कुछ ऐसे क्वेश्चंस उसमें होंगे जो ये प्रिडिक्ट करने के काबिल होंगे
कि वो ड्रग ले सकता है इन फ्यूचर, या ले रहा है या लेता रहा है, और कितना वो ऑनेस्ट है और कितना उसमें थेफ्ट की इंटेंशन है. देन मल्टीपल क्वेश्चंस ऑन द सेम टॉपिक टू असेस कंसिस्टेंसी ऑफ द रिस्पॉन्सेज. मे बी कुछ जगहों पे आपको सही आंसर कर रहा है, बट इन सम अदर केसेस ऑफ थेफ्ट जो है इट कैन फॉल इनटू डिफरेंट कैटेगरीज. लेट्स सपोज कि अगर इफ देयर आर मल्टीपल थिंग्स A, B, C, D in the organization, most probably अगर उसको ये नहीं चाहिए तो he is in need of this thing. If not this, then this thing. If not this, then this thing. तो मे बी किसी ना किसी फॉर्म में वो theft हो, but not in a very particular manner. तो आप उससे डिफरेंट क्वेश्चंस पूछें जिससे आपको पता चल जाए कि कहीं डिसऑनेस्टी का एलिमेंट है. अगर है तो you should correct it. Now the issue is that it should not be used as the sole criteria for a hiring decision, because ye tests, they are humanly made, they've got some errors, and sometimes if a person is not filling the questionnaire or the test properly, तो हो सकता है आपको information गलत आ जाए. वो गलत information आपको गलत लीड कर सकती है. So these honesty tests should not be the only criteria. डिफरेंट चीजों से इंटरव्यू है आपके पास, हम सिलेक्शन प्रोसेस में उसको जाके इंशाल्लाह डिटेल में करेंगे. उन सारे प्रोसेस से चेक करें एंड देन फाइनलाइज योर डिसीजन. नॉट दैट यू शुड बेस योर डिसीजन ओनली ऑन दिस टेस्ट कि ये डिसऑनेस्ट है, इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे. सो यूज मल्टीपल थिंग्स. नाउ विसल ब्लोइंग. विसल ब्लोइंग का पहले कॉन्सेप्ट देख लेते हैं और फिर देख लेते हैं कि एम्प्लॉइज राइट्स में कैसे आता है. विसल ब्लोइंग का सिंपल मतलब ये है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई ऐसी गलत बात हो रही है विच इज अगेंस्ट द रूल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो कोई एक बंदा इनिशिएटिव लेता है और वो फॉर्मल, इनफॉर्मल, ओपन या हिडन कंप्लेन फाइल करता है. लेट्स सपोज देयर आर 5 पीपल और 5 लोगों में से ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये बहुत सारे लोग हैं आपके पास, और इनमें से ये बंदा फॉर एग्जांपल ये ठीक काम नहीं कर रहा, ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान पहुंचा रहा है, तो रूल्स एंड रेगुलेशन की खिलाफ वर्जी कर रहा है, तो इसको आप क्या करेंगे? वन ऑफ दीज पीपल जो ये काम तो नहीं कर रहा बट ये जाके कंप्लेन करता है या ये एक बात को उठाता है कि ये गलत काम ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है, तो प्रॉब्लम क्या होता है कि जब इन एम्प्लॉयज को पता चलता है कि दिस वाज द पर्सन जिसने कंप्लेन की है, तो दिस पर्सन इज अंडर द थ्रेट ऑफ ऑल दीज पीपल. किसी ना किसी फॉर्म में वो थ्रेट करते हैं उसको. मे बी इफ समबडी इज कंप्लेनिंग अबाउट हिज और हर बॉस, तो बॉस उसके खिलाफ हो जाएगा बाद में. तो ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि जो ऐसे विसल ब्लोअर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करे, उनके राइट को प्रोटेक्ट करे, और उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा काम किया है, उनको जो सहूलत, जो फैसिलिटी चाहिए वो उनको दें और उनको प्रोटेक्ट करके रखें. विसल ब्लोइंग अकर्स व्हेन एन एम्प्लॉई रिपोर्ट्स हिज और हर एम्प्लॉयर टू एन आउटसाइड एजेंसी ओवर व्हाट द एम्प्लॉई बिलीव्स इन एन इलीगल और अनएथिकल प्रैक्टिस. अब एम्प्लॉई जो है वो कह रहा है कि कहां इलीगल या अनएथिकल प्रैक्टिस हो रही है. जब वो कंप्लेन करेगा तो ही शी इज विसल ब्लोइंग. जैसे विसल की आवाज होती है और सबको पता चल जाता है, ही इज एक्चुअली डूइंग दैट. Many firms have voluntarily adopted policies to protect employees who identify problems. क्योंकि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसे होता है कि जो आइडेंटिफाई करते हैं प्रॉब्लम्स, उनके लोग खिलाफ हो जाते हैं. तो ऑर्गेनाइजेशन शुड प्रोटेक्ट दीज एम्प्लॉइज, विसल ब्लोअर्स, ताकि प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई होती रहे और साथ साथ उनका सोल्यूशन होता रहे, तो जिससे ऑर्गेनाइजेशन को ओवरऑल फायदा होगा. अब एक और जो इशू है इसमें, द सेम इन द ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉइज राइट, उसमें है एम्प्लॉय मॉनिटरिंग एट वर्क प्लेस, और साथ उसमें प्रॉब्लम है कि एम्प्लॉय जो सिक्योरिटी है वर्क प्लेस की, उसका क्या होगा. अब इसमें डिफरेंस कैसे आता है? फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे थेफ्ट है, अगर कोई थेफ्ट कर रहा है तो उस पर मॉनिटर किया जाना चाहिए उसको. थेफ्ट का मतलब यह है कि आप ऑर्गेनाइजेशन में आ रहे हो, लेट्स सपोज स्टेशनरी है, and you're not, instead of using that stationery at your office because you're allowed to use it there, you're taking it home or you're selling a few things from the organization. That is a theft. कि आप कोई भी चीज चोरी करके कर ले जाते हो या उसको outside the organization सेल कर रहे हो without the knowledge of your
ऑर्गेनाइजेशन, तो वो थेफ्ट है. देन रिवीलिंग ऑफ ट्रेड सीक्रेट्स टू कंपेटिटर्स, मतलब ये कि लेट सपोज जिस तरह आपने देखा है आजकल मोबाइल्स के नए नए डिजाइन आते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आती है, बट टेक्नोलॉजी जब डेवलप हो जाती है इट टेक्स अ फ्यू ईयर्स और फ्यू मंथ्स और अ फ्यू डेज टू बिकम अ पार्ट ऑफ दैट मोबाइल और अ लैपटॉप और अ कंप्यूटर. लेकिन उस टाइम पे वो टेक्नोलॉजी किसी दूसरी कंपनी के पास नहीं होती. अगर आपका एम्प्लॉय वो टेक्नोलॉजी बिफोर इट्स रिलीज दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को बता देता है तो वो भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बिकॉज दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में भी उसको जल्दी बना के सेल कर दे और आपने जो इनोवेशन जो क्रिएटिविटी की थी उसका कोई फायदा ना हो ऑर्गेनाइजेशन को. सो रिवीलिंग द ट्रेड सीक्रेट्स टू कंपेटिटर इज ऑल्सो वन ऑफ द इशूज, वर्क प्लेस सिक्योरिटी का इशू है. देन यूजिंग द कस्टमर डेटाबेस फॉर पर्सनल गेन्स, कि आपके पास लोगों के नाम होते हैं, एड्रेसेस होते हैं, टेलीफोन नंबर्स होते हैं, डिफरेंट चीजें होती हैं. जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है लेट्स सपोज, उसके पास ये सारी इंफॉर्मेशन होगी एंड इट इज ऑलमोस्ट अवेलेबल विद ऑल द एम्प्लॉइज. अगर उसमें से आपको इंफॉर्मेशन, किसी का नाम, किसी का फोन नंबर, किसी का एड्रेस अपने पर्सनल गेन के लिए, अपने पर्सनल रेफरेंस के लिए यूज करते हैं तो देन इट इज अ प्रॉब्लम, इट इज अ सिक्योरिटी इशू. तो ये भी ऑर्गेनाइजेशन को देखना होता है. अब प्रॉब्लम ये है कि दैट ऑर्गेनाइजेशन विल हैव टू बैलेंस बिटवीन व्हाट द मॉनिटरिंग ऑफ द एम्प्लॉइज एंड द वर्कप्लेस सिक्योरिटी. लेट्स सपोज इसमें हमारे पास 3 है, कंप्यूटर है, ईमेल है, टेलीफोन है. द एम्प्लॉय इज टॉकिंग टू समबडी एल्स आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन में भी, बट आपने वहां मॉनिटरिंग लगा दी है उसके फोन पे और आप उसकी बातें सुन रहे हैं. तो एक तरफ तो आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को मॉनिटर करना है कि उसकी कोई इंफॉर्मेशन गलत लीक ना हो रही हो, बट एट द सेम टाइम यू आर एक्चुअली इन्वेडिंग दैट एम्प्लॉइज प्राइवेसी. उसका जो प्राइवेसी बबल है उसको आप इन्वेड कर रहे हैं. मे बी ही इज टॉकिंग टू हिज फैमिली, मे बी ही इज टॉकिंग टू हिज फ्रेंड्स, मे बी ही इज गॉट समथिंग वेरी पर्सनल टू टॉक टू समबडी, बट आप बिकॉज इंटरवीन कर रहे हैं, आप उसकी बातें सुन रहे हैं, तो यू आर एक्चुअली एंटरिंग हिज प्राइवेट लाइफ, हिज और हर. तो अब इस चीज को बैलेंस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप नहीं सुनते तो मे बी दैट पर्सन इज पासिंग ऑन सम वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन टू सम कंपेटिटर और ऑर्गेनाइजेशन को भी बात बाहर निकाल रहा है. तो यू एज एन ऑर्गेनाइजेशन यू हैव टू मेंटेन अ बैलेंस, डेवलप एंड कम्युनिकेट पॉलिसीज फॉर मॉनिटरिंग. मतलब उनको बता दे दैट हम आपको इन चीजों पे मॉनिटर कर रहे होंगे. लेट्स सपोज कंप्यूटर है, यू टेल देम दैट इट इज शेयर्ड and your folders are open and anyone in the organization whoever has got that connection of that network can access your computer, so be careful. Then emails hai, you tell them that your emails are checked after every week or day or whatever the date is. और इसी तरह आप टेलीफोन का बता दें कि कितना लेवल ऑफ सिक्योरिटी आप पे जो लगाया गया ताकि वो बंदा अवेयर हो एंड ही और शी शुड नॉट फील दैट उसकी प्राइवेसी में कोई प्रॉब्लम आ रहा है बाय द ऑर्गेनाइजेशन. Then there is one other issue is workplace romance, which means that sometimes when you're working together in the same organization, you develop some kind of relationships, and it is especially concerned with the different genders, male and female. You develop some kind of relationships which might and might not affect the organization in a negative or in a positive way. उसमें क्या है, some companies try to prevent relationship between employees because of the potential discrimination of sexual harassment issue. जो हमने इस बात की कि ऐसी अनवांटेड एक्टिविटीज होती हैं जिससे एम्प्लॉयज डिस्टर्ब होते हैं एक दूसरे से. सो अ फ्यू ऑर्गेनाइजेशंस दे डू नॉट इनकरेज द वर्कप्लेस रोमांस और द रिलेशनशिप्स एट वर्कप्लेस, especially between a male and a female member. But some other organizations view romance as having a positive effect. उनकी मे बी उनकी कमिटमेंट बढ़ जाती है, मे बी उनकी रिटेंशन बढ़ जाती है एम्प्लॉइज की, बिकॉज दे आर अटैच्ड विद ईच अदर एंड दे कैन नॉट लीव द ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज इफ वन लीव द अदर विल हैव टू लीव एज वेल. सो सम पीपल व्यू इट लाइक दिस. देन मेनी कंपनीज हैव इशूड पॉलिसीज एंड गाइडलाइंस ऑन हाउ रिलेशनशिप एट वर्क मे एग्जिस्ट. फिर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं कि ठीक है, इफ यू वांट टू कीप अ रिलेशनशिप एट योर फ्री विल बोथ ऑफ देम, then there are certain boundaries. तो वो बाउंड्रीज डिफाइन कर देती हैं, बट इट इज स्टिल एन इशू जो ऑर्गेनाइजेशंस को देखना पड़ता है और मैनेज करना पड़ता है.
नाउ देयर इज अनदर डॉक्ट्राइन which is called the employment at will doctrine. इसका भी employer को and employee को ख्याल करना पड़ता है. employer क्या करता है? The doctrine based on common law allows employer to dismiss employees at any time for any reason. जब आप एक employee को candidate को hire कर रहे होते हो, you make a contract. You have a contract between you and the employee or the candidate. Let's suppose you are an employer and that person, the other person is employee. You have a contract, you propose it and he accepts it that he or she is going to work for you for these many hours on these many wages, ये वो सारा कुछ, और आपने अपने conditions लिखी होती हैं. उन्हीं conditions में you put this doctrine at will that कि आपका जो है employment जो है वो किसी टाइम भी किसी भी रीजन की वजह से खत्म की जा सकती है. अदरवाइज यूजुअली व्हाट द प्रैक्टिस इज कि आप 1 मंथ नोटिस देते हो अगर आपने एम्प्लॉय को निकालना है, दैट हम आपको नेक्स्ट मंथ तक निकाल देंगे बिकॉज ऑफ एनी रीजन. अगर नहीं तो आप उसको 1 मंथ पे देते हैं और फिर आप निकाल देते हैं. इसी तरह एम्प्लॉय का हक बनता है कि वो आपको जो भी प्रिस्क्राइब नोटिस है वो नोटिस दे कि आफ्टर 1 week or month or a year I will not be able to work with the organization, ताकि organization timely अपना कुछ ना कुछ मैनेज कर लेती है. Has been modified to prohibit termination based on race, religion, sex, national origin, age or disability. अब इसमें जो इशू आ रहे थे, some people used to use it for discrimination. तो उन्होंने मॉडिफाई किया लॉ ने कि ये डिस्क्रिमिनेशन के लिए यूज नहीं करना चाहिए, बट अदरवाइज इट इज यूजफुल. अगर यूज करना है तो आप कर सकते हैं. डिसिप्लिन, द अदर इशू रिलेटेड टू योर सिक्योरिटी एंड एनवायरमेंट. डिसिप्लिन है क्या, पहले तो इसको देख लेते हैं. इट इज अ सिस्टम ऑफ रूल्स ऑफ कॉन्डक्ट और मेथड ऑफ प्रैक्टिसेस. मतलब क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशंस है जिनको प्रैक्टिस करना है हर एम्प्लॉय ने और एम्प्लॉयर ने उसको देखना है कि किस तरीके से प्रैक्टिस हो रही है. अनदर मीनिंग ऑफ डिसिप्लिन इज the trait of being well behaved. If some employee, if some person is very well behaved, you are going to say he or she is disciplined. तो ये उसका दूसरा मीनिंग हो जाता है. Then it is a condition where employees conduct themselves in accordance with the organization's rules and standards or regulations of acceptable behavior. Like आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने आपके लिए डिफाइन कर दिया है that these are your boundaries. If somebody is going out of these boundaries, वो discipline में नहीं आ रहा, but if somebody is remaining in these boundaries and acting fine, then you might say that he or she is a disciplined person or the employees are disciplined people. अगर वो given boundaries के अंदर रहता है, अगर उससे वो बाहर जाता है तो then he or she is not disciplined, उसके फिर आगे further consequences हो सकते हैं. Now, disciplinary issues कौन से आपके पास? The most frequent violations requiring disciplinary actions involve what? The attendance problem. Sometimes people do not come to the organization. अगर monitoring नहीं हो रही, the next day they are going to come and they are going to mark themselves present. ये एक बहुत बड़ा discipline का issue है. Then, if not, let's suppose your office starts at 9 o'clock and you're coming at maybe 10:30, but when you are filling your register you are putting your time as 8:55 to show that you're on time. तो इस तरह के अटेंडेंस में बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं जिनको आपने प्रॉपर्ली मॉनिटर करना होता है. देन ऑन द जॉब बिहेवियर, ऑन द जॉब बिहेवियर में क्या है कि आपके जो एम्प्लॉयज हैं, कोवर्कर्स हैं, then your employees, and then your boss, and then your subordinate, and then your female members and your male members, and you've got different diversity of people. आप उनके साथ कैसा बिहेव करते हैं, how you behave at work, जैसे organizational behavior हम कहते हैं, how people behave at a workplace. इसी तरह ये भी आपने मॉनिटर करना होता है और देखना होता है. डिसऑनेस्टी पे जिस पे हमने बात की कि डिसऑनेस्टी अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के साथ कर रहे हैं, उनको प्रॉपर फैक्ट्स फिगर्स नहीं बता रहे, कंसील कर रहे हैं, चीज़ों को छुपा रहे हैं, नहीं बता रहे,
तो फिर वो भी एक प्रॉब्लम है, वो भी एम्प्लॉइज राइट और डिसिप्लिन को जो है वो उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं. देन आउटसाइड एक्टिविटीज, ऑर्गेनाइजेशंस आर इवन बॉदर्ड अबाउट कि व्हाट दैट पर्सन और दैट एम्प्लॉई इज डूइंग आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन. मतलब ये कि ऑर्गेनाइजेशन की हद तक जो ऑन द जॉब बिहेवियर है वो बहुत अच्छा है, बट इफ समबडी इज अ ड्रग एडिक्ट और वो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन जाके ड्रग्स लेता है, दैट ऑल्सो बिकम्स द ऑर्गेनाइजेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ दैट. अदरवाइज बिकॉज द एम्प्लॉय इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, तो आपने अपने पार्ट को किसी न किसी तरीके से डिसिप्लिन करना होता है और उसके राइट्स का ख्याल करना होता है और उसका हर तरह से ख्याल करना होता है. नाउ डिसिप्लिनरी गाइडलाइंस, कि किस तरीके से आपने डिसिप्लिन को मेंटेन करवाना है. फर्स्ट ऑफ ऑल, मेक डिसिप्लिनरी एक्शंस करेक्टिव रादर देन प्यूनिटिव. मतलब क्या है इसका, कि आप जब करेक्टिव मेजर्स ले रहे हैं, लेट्स सपोज यू आर पनिशिंग समबडी, you should not punish that person for the sake of punishing that person, but for the correction of that person. कि आपका जो एम, आपकी इंटेंशन, आपका जो गोल होता है behind this disciplinary actions, it is not to punish somebody, it is not to penalize somebody, it is to correct him or her. कि अगर कोई ड्रग एडिक्ट है और आप उसको बिकॉज ऑफ दिस ड्रग एडिक्शन और बिकॉज ऑफ एनीथिंग एल्स उसको पनिश करते हैं और आपकी माइंड में होता है कि इसको पनिश करना है, देन दैट इज नॉट द राइट पॉलिसी. यू शुड डू दीज थिंग्स, डिसिप्लिनरी एक्शंस शुड बी टेकन टू करेक्ट दैट पर्सन एंड नॉट टू पनिश दैट पर्सन. उसको पनिश नहीं करना, उसको सजा नहीं देनी, उसको ठीक करना है, उसके साथ इस तरीके से सलूक करना है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए फायदा दे और उसकी अपनी लाइफ भी ठीक हो जाए. देन मेक डिसिप्लिनरी एक्शंस प्रोग्रेसिव. That is, in the next slide we are going to see it with a diagram, that you start with verbal warning, then written warning, then suspension and then dismissal. कैसे है ये देखें. Verbal warning, as we said that we can follow this thing and make it progressive. Progressive का मतलब ये है कि you start from here and you go towards this side. This arrow is showing that. What? That you start with less स्वेयर थिंग. अगर कोई लेट आ रहा है एंड मैनेजर ने देखा एक दिन 2 दिन लेट आया, तो यू शुड फर्स्ट ऑफ ऑल, इवन बिफोर दैट, शुड आस्क दैट एम्प्लॉय की क्या प्रॉब्लम है. इफ ही और शी हैज सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम जो आप सॉल्व कर सकते हैं एज एन ऑर्गेनाइजेशन, यू शुड सॉल्व इट. अदरवाइज यू शुड गिव द वर्बल वार्निंग्स, कि आप उसको वर्बली बता दें, बात करके उसको बता दें कि it should not be tolerated anymore. कि आप लेट आते हो या आप एब्सेंट होते हो, it cannot be tolerated by the organization, but verbal. Then if it still continues और वो लेट आता रहता है या disciplinary actions करता है, then you go for written warning. Make it formal, make it a part of that person's file. आप एक written letter लिखते हैं और आप उसे कहते हैं कि आप इतने इतने दिन लेट आए हैं and you have been given verbal warning. So next time if you're late, you'll have to face the music, you'll have to face the consequences. तो written warning दे दें. अगर written warning के बाद भी आपने देखा कि अभी तक हालात ठीक नहीं हुए, तो आप उसको सस्पेंड कर दें, कुछ दिनों के लिए छुट्टी कर दें. पेड, अनपेड, इट्स यूजुअली अनपेड, कि आप उसको सस्पेंड कर देते हैं, that you're not allowed to come to the organization for the rest of the month or the 5 days और कितना, आप उसको थोड़े दिन के लिए सस्पेंड कर देते हैं, just to give him an idea कि वो कुछ गलत कर रहा है. But you are making it progressive. You started from verbal warning, moved on to the written suspension, and if it still continues, कि दोबारा जब उसने ऑर्गेनाइजेशन 5-10 दिन बाद, महीने बाद ज्वाइन की है, फिर भी वही काम हो रहा है, then you are going to fire that person or dismissal. खत्म करते हैं. फिर then you have the right and it is also ethical that you should fire that person. तो किसी तरीके के भी जो disciplinary actions हैं, we should make them progressive, which means that starting from less severe actions, if it still continues, to going to the more severe actions. जिसमें बहुत ज्यादा जो है dismissal तक आ जाते हैं, that you fire that person, उसके साथ ऑर्गेनाइजेशन के साथ ताल्लुक उसका खत्म हो जाता है. Then disciplinary guideline में एक और कॉन्सेप्ट है हमारे पास, hot stove rule. हॉट स्टोव रूल का मतलब ये है
कि जब आपको फर्स्ट वार्निंग मिल जाए, अच्छा इसकी फिलॉसफी, इस रूल की फिलॉसफी क्या है, जब हमारे पास आग जल रही होती, चूल्हा होता है, गर्म होता है, वी डोंट टच इट, वी सी इट्स हॉट, इट्स रेड, वी डोंट टच इट बिकॉज वी नो दैट इफ वी आर गोइंग टू टच इट, इट इज गोइंग टू बर्न आवर हैंड्स और फिंगर्स और फिंगर टिप्स, तो हम उसको टच नहीं करते। इसी तरह वो कह रहा है कि अगर आपको लेस सेवियर वार्निंग कोई मिल गई हो और दूसरा लेवल भी अगर मिल गया हो, तो देन यू शुड नो दैट दिस स्टोव, दिस चूल्हा, इट इज हॉट, इट इज गर्म, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्या आ सकती है कि इफ दिस प्रॉब्लम विल कंटिन्यू, दे आर गोइंग टू गिव मी अ थर्ड एंड देन द फाइनल डिसमिसल। तो हॉट स्टोव रूल आपको बता देता है, द स्टोव इज रेड सो बी केयरफुल, मतलब यू हैव ऑलरेडी बीन गिवन सर्टन वार्निंग्स, तो उन वार्निंग्स का ख्याल करें, डोंट मेक देम गो टुवर्ड्स दिस वेयर वार्निंग्स और आपका डिसमिसल ना हो जाए। फॉलो द हॉट स्टोव रूल, दैट इज इमीडिएट रिस्पॉन्स एंड एम्पल वार्निंग, कि जैसे आपको पता चलता है एम्प्लॉई को कि मेरे बारे में प्रॉब्लम है, तो आप इमीडिएट रिस्पॉन्स दें एंड देन यू शुड ट्राई एंड मेक योर सेल्फ लिटिल मोर डिसिप्लिन्ड। अच्छा, इसमें एक और साथ कॉन्सेप्ट आ जाता है एम्प्लॉय काउंसलिंग का, कि ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसमें एट अ टाइम सीनियर जूनियर लोग मौजूद होते हैं, काउंसलर्स भी मौजूद होते हैं, मेंटोर्स भी होते हैं। वो क्या करें कि वो उन एम्प्लॉयज का जिनका डिसिप्लिन का इशू आ रहा है उनको काउंसल करें। काउंसल का मतलब ये है कि उनके साथ बैठें, बात करें, इफ दे हैव सम प्रॉब्लम्स, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करें, लेकिन उनकी काउंसलिंग करें ताकि वो उस चीज से बाहर निकल सके, उस प्रॉब्लम से बाहर आ सके और उनकी जो है करेक्शन हो सके। डायरेक्शन और हेल्पफुल सजेशंस रिगार्डिंग अ डिसीजन और फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, अगर उसको एक दो वार्निंग मिल चुकी है तो आप उसको काउंसिल करें कि वो नेक्स्ट फ्यूचर में किस तरीके से चले ऑर्गेनाइजेशन के साथ। देन दिस अप्रोच इज मोस्ट अप्रोप्रिएट व्हेन अ परफॉर्मेंस प्रॉब्लम इज नॉट अमेंडेबल टू ट्रेन एंड डेवलपमेंट ऑफ द मेंटरिंग और कोचिंग। मतलब जब आपको ये पता चल जाए कि ये जो है ये अमेंडेबल नहीं है, ना तो ट्रेनिंग इसको ठीक कर सकती है, ना इसको आपकी डेवलपमेंट ठीक कर सकती है, ना आप इसको मेंटरिंग ठीक कर सकती है, और ना आप उसको कोचिंग ठीक कर सकती है। जो फॉर्मल वेज है अगर वो ठीक नहीं कर सकते तो देन यू शुड गो फॉर काउंसलिंग। आउटसाइड काउंसलिंग करवा लें या विद इन द ऑर्गेनाइजेशन करवा लें, बट उसको काउंसिल करें कि उसने फ्यूचर में क्या करना है। देन काउंसलिंग करने का तरीका मेन क्या होना चाहिए, लिसन टू द एम्प्लॉय टू अनकवर द रीजंस फॉर पुअर परफॉर्मेंस, या डिसिप्लिनरी इशू या पुअर परफॉर्मेंस, you will have to listen to that person, you will have to listen to your employees। जो वो आपको बताता है कि उसको शायद ट्रेनिंग की जरूरत हो, शायद उसको कोई ऐसी फैमिली इश्यूज हो, शायद उसको फाइनेंशियल क्राइसिस में गुजर रहा हो, तो लिसन टू हिम एंड देन यू विल गेट टू नो द एक्चुअल प्रॉब्लम कि किस प्रॉब्लम के थ्रू गुजर रहा है। फोकस ऑन परफॉर्मेंस रिलेटेड बिहेवियर, आप इधर उधर की बात करने से ज्यादा बेहतर है कि उसके परफॉर्मेंस रिलेटेड बिहेवियर सही रहे। कि अगर वो लेट आ रहा है, लेट सपोज, तो उसकी परफॉर्मेंस डाउन हो रही है, तो सिर्फ उसकी बात करें, don't go beyond that। Then get the employee to accept the problem and work to find solutions। बातों बातों में काउंसलिंग करते वक्त ये जरूर करें that employee should firstly accept कि हाँ मेरे में प्रॉब्लम है, because we normally say that a good identification of a problem is half of the solution। कि अच्छे तरीके से अगर आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया हो तो उसका सोल्यूशन हाफ आपको ऑलरेडी मिल जाता है, इट्स हाफ ऑफ अ सोल्यूशन। तो इसलिए आप प्रॉब्लम जो है उसको आइडेंटिफाई करें एंड मेक हिम अंडरस्टैंड दैट ही और शी इज गोइंग थ्रू अ प्रॉब्लम, दैट ही और शी शुड करेक्ट इट, और फिर उससे सोल्यूशन डिस्कस करें। मैनेजर्स आर नॉट एक्सपेक्टेड टू सॉल्व एम्प्लॉइज पर्सनल प्रॉब्लम्स। अब देयर आर लिमिट्स, ऑर्गेनाइजेशन एक लिमिट तक जो है वो एम्प्लॉय का साथ दे सकती है, उससे ज्यादा नहीं दे सकती। लेट सपोज अगर एक एम्प्लॉय जो है वो अंडर स्ट्रेस है, और जो रीजन है स्ट्रेस का वो ये है कि ही माइट हैड टेकन लोन फ्रॉम द बैंक और फ्रॉम सम रिलेटिव, और अब उसको वो थ्रेट कर रहे हैं बिकॉज ही डिड नॉट पे इट ऑन टाइम। इस प्रॉब्लम को इफ इट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ लोन, ऑर्गेनाइजेशन सॉल्व नहीं कर सकती और ना मैनेजर को करना चाहिए। मैनेजर को सिर्फ परफॉर्मेंस रिलेटेड या उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करना चाहिए। देन एम्प्लॉय असिस्टेंट प्रोग्राम्स करने चाहिए जो एम्प्लॉयज को असिस्ट करें, एम्प्लॉयज को इंफॉर्मेशन दें, एम्प्लॉयज को
जिस तरह सेफ्टी एंड हेल्थ के बारे में बताएं, ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करते रहें और ठीक तरीके से चले. Another thing which can be used is the employee handbook. Employee handbook क्या होती है? It's just it can be in one paper, two paper, or in a form of booklet or a complete book. जिसमें ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होते हैं. वो यूज करना चाहिए. यूज करने का मतलब ये है यू विल हैव टू गिव इट टू योर एम्प्लॉइज, ताकि वो एम्प्लॉइज उसको पढ़े और रूल्स एंड रेगुलेशंस देखते रहें, और उसको पढ़ने के बाद उनको रूल्स एंड रेगुलेशन से पता चल जाएंगे, तो दे विल हैव लेस डिसिप्लिनरी एंड सेफ्टी इश्यूज. तो ये हैंडबुक का यूज जो है ये काफी यूजफुल हो सकता है. करता क्या है? इट हेल्प्स एम्प्लॉइज लर्न अबाउट द कंपनी. ऑब्वियसली उसकी हिस्ट्री पढ़ेगा, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़ेगा, कंपनी के बारे में पता चल जाएगा. Then it provides central information source concerning policies, work rules and benefits. Obviously the same thing. It helps ensure that HRM policies will be fair, equitable and consistently applied. कि जो HRM की policies हैं आज वो ही continuously चलती रहेंगी and they are fair. They are not discriminating against anybody. ताकि वो handbook, जब हैंडबुक पढ़ेगा तब उसको ये चीजें पता चलेंगी, हिस्ट्री पढ़ेगा तब उसको ये चीजें पता चलेंगी. स्पेशली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ न्यू एम्प्लॉय. जब नया एम्प्लॉय आता है वो ऑलरेडी बड़ा स्ट्रेस्ड होता है, बड़ा फेयर ऑफ अननोन में होता है, तो उसको हैंडबुक दें, वो पढ़े, उसको देखे रूल्स एंड रेगुलेशंस को, तो उसके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है. व्हाई यूज एन एम्प्लॉय हैंडबुक? जिस तरह अभी हमने डिस्कस किया है कि इट क्रिएट सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड कमिटमेंट. जितना आपको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ज्यादा पता होगा उतना आप सिक्योर फील करते हो एंड कमिटेड फील करते हो ऑर्गेनाइजेशन के साथ, बिकॉज आप समझते हो कि आप ऑर्गेनाइजेशन को जानते हो और ऑर्गेनाइजेशन आपका ख्याल करेगी. कैन बी यूज टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू न्यू एम्प्लॉयज. जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर अ न्यू एम्प्लॉय बिकॉज वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी उसकी बड़ी डाउन होती है, बहुत कम होती है. तो अगर वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को अच्छे तरीके से समझ जाएगा तो उसको कोई बाद में प्रॉब्लम नहीं होगी. देन मस्ट बी सीन एज यूजफुल, कंसाइज, वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड मस्ट बी कंटिन्यूली अपडेटेड. हैंडबुक के बारे में उसको अच्छे मतलब मस्ट बी सीन एज यूजफुल, कि उसको एज अ न्यू एम्प्लॉई या एज अ एम्प्लॉयर या एज अ एम्प्लॉई उसको एक रिडंडेंट चीज नहीं समझना चाहिए कि ये खाली बुक है, खैर है, इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस ही है ना. क्यों? बिकॉज उसमें यू गॉट वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट यू मस्ट नो एज एन एम्प्लॉई. अब कंसाइज होनी चाहिए, यह है कि छोटी होनी चाहिए. इट शुड नॉट बी सच अ लॉन्ग बुक के लोग पढ़े ही ना इसको. एंड देन वेल ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए, टेबल ऑफ कंटेंट बना हो, पिक्चर्स हैं इफ नीडेड, क्लियरली लिखा हो, हर चीज डिफाइन की हो विद एग्जांपल्स, एंड कंटिन्यूली अपडेटेड. कि जो जिस तरह इस तरह पॉलिसीज चेंज होती रहती हैं हैंडबुक में, उसी तरह आपकी इंफॉर्मेशन चेंज होती रहे ताकि लोगों को फायदा हो, उनको नई नई पॉलिसीज का पता चलता रहे. नाउ कम्युनिकेशन, यूजिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर एम्प्लॉय कम्युनिकेशन. इसमें क्या है? It provides greater flexibility and timeless of information. Timeliness of information. मतलब ये कि आप only through the internet and the usage of IT, you can ask them, you can give them so much of information और टाइम पे मिल जाती है. Let's suppose आपने एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको आपने मीटिंग के लिए एक नोटिस भेजना है. उसका एक तरीका तो ये है कि आप एक लेटर लिखें, उसकी कॉपीज बना के हर किसी के ऑफिस में भिजवाएं, और अगर आपके पास 10 ऑफिस हैं, इट इज गोइंग टू टेक एटलीस्ट हाफ एन आवर, और 2-3 आपको लोग चाहिए जो आपके लिए डोर टू डोर खत लेके जा रहे हैं या नोटिस लेके जा रहे हैं. ऑन द अदर हैंड, इफ यू आर यूजिंग द IT सर्विसेज विच आर लाइक ईमेल, SMS, डिफरेंट चीजें हैं, तो उसमें आपको फायदा क्या हो सकता है कि आप एक क्लिक करेंगे और सबके सबको ईमेल चली जाएगी, सबको SMS चला जाएगा एंड टाइमली उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. देन नेटवर्क कम्युनिकेशन, ईमेल दे दें, इंस्टेंट मैसेज दे दें, वॉइस इंट्रानेट्स एंड एक्स्ट्रानेट्स, इसमें अभी डिफरेंस आपको बताता हूं. एंड टॉकिंग इंटरनेट, कि किस तरीके से उनकी टेलीफोनिक या स्काइप या डिफरेंट चैनल्स के थ्रू बात हो सके. देन वायरलेस कम्युनिकेशंस, माइक्रोवेव सिग्नल, सैटेलाइट्स, रेडियो वेव्स, रेडियो, ये आज से कुछ 100 साल पहले, 50 साल पहले ये चीजें जो है वो ज्यादातर यूज होती थी, बट नाउ वी आर यूजिंग द ईमेल्स एंड instant messages and SMS. Now, 2 very important terms are internet and intranet. Internet and intranet में जो difference है कि आपकी ये organization है, let's suppose this is the boundary of your organization.
Intra means within. So when you are having one office here, one office here, one office here, the other office is here, and you've got different offices here, different people are sitting here. आपका एक internal communication का system develop हुआ है. Let's suppose एक टेलीफोन की वायर गई हुई है, let's suppose एक नेटवर्क बना हुआ है जो हर एक को हर एक दूसरे से कनेक्ट कर रहा है. It is not for the outside of the organization, it is for within the organization, and this thing is called the intranet. But internet is for the whole globe. You can see that when you're online on the internet, you can access almost all the places in the world wherever the internet is available, but intranet is only used for within the organization system. Wireless communication की हमने बात कर ली. Now इन सारी चीज़ों में जब कंप्लेंट अगर एम्प्लॉय को फिर भी होती है क्योंकि डिसिप्लिन का इशू आ रहा है या एम्प्लॉय को खुद ऐसा प्रॉब्लम है जिसके बारे में वो कंप्लेन करना चाह रहा है, तो उसका तरीका जो सबसे सफिशिएंट अच्छा तरीका है, इट हैज़ 4 स्टेप्स. 4 स्टेप्स किस तरह है ये भी आप अगर ध्यान से देखें तो दे आर प्रोग्रेसिव फ्रॉम स्टेप 1 टू स्टेप 2. यू आर एक्चुअली गोइंग थ्रू द हिरार्की कि आप अपने इमीडिएट बॉस को, इमीडिएट सुपरवाइजर को सबसे पहले कंप्लेन करते हैं. कंप्लेंट प्रोसीजर्स सबसे पहले इसको कंप्लेन करते हैं कि जो भी आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ये अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता या नहीं करता, देन यू आर गोइंग टू गो टू द नेक्स्ट लेवल विच कैन बी योर एम्प्लॉयर रिलेशन, जो मैनेजर होता है रिलेशनशिप का, जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के साथ डेवलप कर रहा होता है. देन इफ ही कैन नॉट सॉल्व योर प्रॉब्लम, देन यू आर गोइंग टू गो टू द डिपार्टमेंट हेड. अब कर क्या रहे हैं आप, अपने इमीडिएट बॉस को बताया, अगर उसने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की उसके बॉस को बताया, उसने नहीं सॉल्व की तो आप लेवल्स अपने चेंज करे जा रहे हैं. और अगर आप यहाँ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते या नहीं हो रही तो देन यू आर गोइंग टू गो टू द एम्प्लॉय प्रेसिडेंट. ये हम यूनियंस की कलेक्टिव बार्गेनिंग की जब बात करेंगे तो वहां हम देखेंगे कि एम्प्लॉय प्रेसिडेंट कौन होता है, यूनियन का प्रेसिडेंट कौन होता है. बट यहाँ सिर्फ वो बताने की ये कोशिश कर रहा है कि वेन एवर यू हैव अ कंप्लेन, लेट सपोज अगर आपकी हिरार्की कुछ ऐसी है कि ये लोग हैं आपकी चेन में, ये आप ये एम्प्लॉय हो, यू हैव टू कंप्लेन टू दिस पर्सन. अगर इसने नहीं कुछ किया देन यू हैव टू कंप्लेन टू दिस पर्सन. अगर उसने भी कुछ नहीं किया देन यू हैव टू कंप्लेन टू दिस पर्सन. एंड अगर उसने भी कुछ नहीं किया देन यू हैव टू कंप्लेन टू दिस पर्सन. और इसके बाद का क्या प्रोसीजर होता है, दैट हाउ यू गो टू द कोर्ट और समथिंग, वो हम इंशाल्लाह किसी एक चैप्टर में डिस्कस करेंगे. देन ये जो सजेशन प्रोग्राम्स हैं या कंप्लेन प्रोग्राम्स हैं, व्हाई शुड कंपनीज डू दैट, व्हाट इज the reason and what is the importance of these things? It allow employees to tell management what they perceive they are doing right or wrong. अगर कोई सुनने वाला ही नहीं होगा ऑर्गेनाइजेशन में तो people and employees they are not going to tell anything to anyone. So if there are suggestion box और suggestion programs available, या आपने ओपन डोर पॉलिसी रखी हुई है कि कोई भी किसी टाइम भी आके कंप्लेन कर सकता है, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर सकता है, कोई सजेशन दे सकता है, देन employees might come with some very great ideas, some very great suggestions. तो वो उनकी suggestions जो है वो हमें as an organization लेनी चाहिए, as an HR person लेनी चाहिए. Then connected to other management systems such as continuous improvement process. Continuous improvement process का मतलब ये है कि आज आपने let's suppose quality 8 quality की कोई product बनाई है और इससे पहले आप 7 की बना रहे थे, तो you should always continue to search for new qualities, which means कि level 9 की बुक बनाएं, then level 10 की प्रोडक्ट बनाएं, then level 11 की बनाएं. तो keep on improving. जिस तरह आप देखते हो कि स्टार्ट में you just had a calculator, उसको improve करके IT को improve करके you move into computers, फिर then we move on to Pentiums and then now i3s and i5s and i7s, डिफरेंट आप improve करते आ रहे हैं, क्वालिटी improve करते हैं. इसी तरह मैन्युफैक्चरिंग में, सर्विसेज में आप क्वालिटीज improve करते रहते हैं. Then suggestions must be acknowledged and employee recognized for their efforts. ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि उनकी जो आप उनको suggestions आ रही हैं आपको एम्प्लॉयज की, they should be acknowledged and they should be recognized, ताकि लोग उसको प्रॉपर्ली रिकग्नाइज करें और फिर जो है अगर इम्प्लीमेंट होती है ठीक है, नहीं भी इम्प्लीमेंट होती तो एटलीस्ट आप उनको इनकरेज करें ताकि नेक्स्ट टाइम आपके पास जो लोग हैं वो ज़्यादा सजेशंस लेके आए. नाउ द समरी,
Today's lecture we covered a few things, जिसमें हमने सबसे पहले बात की बेसिक राइट्स की। तो हमने कहा कि बहुत सारी ऐसी जो बेसिक राइट्स की प्रॉब्लम्स हैं वो आजकल बहुत इंपॉर्टेंट इशू बना हुआ है, बहुत हॉट इशू बना हुआ है फॉर द ऑर्गेनाइजेशंस, कि जिसमें ऑर्गेनाइजेशंस को ये प्रॉब्लम आ रही है कि एम्प्लॉइज स्पेशली एजुकेटेड एम्प्लॉइज दे नो व्हाट देयर राइट्स आर एंड दे वांट द ऑर्गेनाइजेशन टू इम्प्लीमेंट दोज पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस व्हिच आर इन लाइन विद द बेसिक राइट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एंड बेसिक राइट्स ऑफ एम्प्लॉइज, जिसमें हमने बात की कि सिक लीव होनी चाहिए, बेसिक पे कितनी होनी चाहिए, मिनिमम वेज होनी चाहिए, हॉलीडेज होनी चाहिए, वर्क प्लेस जो है आपका एनवायरनमेंट जो है वो ड्रग फ्री होना चाहिए। फिर उसमें हमने बात की कि ड्रग फ्री एनवायरनमेंट रखने के लिए आपको ड्रग टेस्टिंग करनी पड़ती है। ड्रग टेस्टिंग किस किस की हो सकती है? एक तो करंट एम्प्लॉयज की आप करते हो जो आपके पास अभी काम कर रहे हैं, लेकिन उससे भी बेहतर यह है कि whenever you are selecting an employee, whenever there is a new employee coming into the organization, you should have him or her drug tested, because उससे आपको पता चलेगा एंड कोई ऐसा एलिमेंट, कोई ऐसा ह्यूमन बीइंग आएगा ही नहीं आपके पास जिससे आपको प्रॉब्लम आएगा। तो फिर हमने उस पर ऑनेस्टी एंड ड्रग टेस्ट की बात की कि जब आप नए लोग रख रहे हो तो उनके ड्रग टेस्ट करें, अगर कोई पास नहीं करता उसको कंसिडर करना छोड़ दें। पुराना एम्प्लॉय अगर आप करते हैं पास नहीं करता तो उसको वार्निंग्स दें, उसको आप करेक्टिव मेजर्स लें, रिहेबिलिटेशन के लिए भेज दें ताकि उसकी करेक्शन हो जाए, और कवर्ड ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट लें जो इन सारी चीजों से कवर्ड हो, दैट नो बैड थिंग शुड एंटर, नो रॉन्ग थिंग शुड एंटर इनटू द ऑर्गेनाइजेशन। तो उसको हम कवर्ड ऑर्गेनाइजेशन कह रहे थे। फिर हमने ऑनेस्टी टेस्ट की बात की, देयर आर सर्टेन टेस्ट्स अवेलेबल जो आप सिलेक्शन के टाइम और सिलेक्शन के बाद भी कर सकते हैं, जिससे आपको ये पता चल जाता है कि थेफ्ट जो है वो तो नहीं हो रहा, कोई पर्सन जो है, कोई एम्प्लॉय जो है वो डिसऑनेस्ट नहीं हो रहा किसी फॉर्म में। अगर हो रहा है यू शुड स्टॉप दैट पर्सन, इमीडिएटली राइट देयर, वार्निंग्स दें और फिर डिफरेंट तरीके से उसको डील करें। फिर विसल ब्लोअर की हमने बात की कि विसल ब्लोअर को हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। विसल ब्लोअर कौन था? जो प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके ऑर्गेनाइजेशन को बताता है, लेकिन उसमें थ्रेट होता है कि दूसरे एम्प्लॉयज आपके खिलाफ हो जाते हैं, तो आप उसके खिलाफ होने को जो दूसरे एम्प्लॉयज हो रहे हैं उससे उसको प्रोटेक्ट करें, तो ताकि नए लोग जो हैं वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करें या किसी की कंप्लेंट है जो अगेंस्ट द रूल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कोई एम्प्लॉय जा रहा है वो कंप्लेन कर सकें। फिर हमने बात की कि एम्प्लॉय मॉनिटरिंग एंड वर्क प्लेस सिक्योरिटी में हमें बैलेंस क्रिएट करना होता है। बैलेंस क्रिएट करने का मतलब ये है कि लेट सपोज आप किसी का कंप्यूटर है, उसमें उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन भी होगी, लेकिन आपने इसलिए चेक करना है कि कोई थेफ्ट तो नहीं हो रहा, कोई डॉक्यूमेंट तो नहीं लीक हो रहा, कुछ ऐसा, तो आप उसका कंप्यूटर चेक करेंगे। बट वाइल यू आर चेकिंग द कंप्यूटर यू आर ऑल्सो इन्वेडिंग दैट पर्सन्स प्राइवेसी। तो इसमें हमने बैलेंस मेंटेन करना है कि कितना हमने मॉनिटर करना है और कितना सिक्योरिटी का ख्याल करना है, कितना उसकी प्राइवेसी का ख्याल करना है। फिर थेफ्ट की हमने बात की, फिर रिवीलिंग मतलब कि क्या क्या चीजें जो हैं वो एम्प्लॉय मॉनिटरिंग में जो आपने ख्याल करना होता है कि थेफ्ट हो सकता है। देन वी सेड कि कंपैटिटर को आपकी इंफॉर्मेशन जा सकती है, वो भी प्रॉब्लम है कि आपने टेक्नोलॉजी बनाई है, यू आर मेकिंग इट एंड डेवलपिंग इनटू अ प्रोडक्ट, और उससे पहले किसी और ऑर्गेनाइजेशन को पता चल जाती है और प्रोडक्ट बना के भेज देते हैं, तो आपकी सेल्स नहीं होगी। फिर वी सेड कि कई दफा आप कस्टमर का डाटा अपने पर्सनल यूज के लिए यूज करते हैं, वो भी एक किस्म का थेफ्ट है, एक किस्म का प्रॉब्लम है। देन वर्क प्लेस रोमांस के बारे में हमने बात की कि देयर आर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस इन विच पीपल गेट इनटू रिलेशनशिप्स। उसमें फिर हमने कहा कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस इसको इनकरेज करती हैं बिकॉज दे फील दैट पीपल विल फील मोर कमिटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन, दे वांट लीव द ऑर्गेनाइजेशन अगर अच्छे वर्कर्स हैं। कुछ इसको डिस्करेज करती हैं बिकॉज दे आर अंडर द थ्रेट के ये सेक्सुअल हरासमेंट या कोई और इश्यूज बन सकते हैं, तो अकॉर्डिंगली उन्होंने पॉलिसीज डेवलप की होती हैं। फिर हमने एम्प्लॉयमेंट एट विल डॉक्ट्राइन की बात की कि एम्प्लॉयमेंट एट विल डॉक्ट्राइन है कि एम्प्लॉयर किसी भी वक्त एम्प्लॉई को निकाल सकता है फॉर एनी रीजन, तो वो आपके कॉन्ट्रैक्ट में ऑलरेडी ये शामिल होता है, बताया होता है कि किस तरीके से जो है किन किन रीजंस की वजह से आप निकल सकते हो या कितने पीरियड का नोटिस आपको देना है और फिर आप निकलेंगे। देन वी मूव्ड ऑन टू द डिसिप्लिन, कि डिसिप्लिन क्या चीज है। हमने कहा कि जो पॉलिसीज रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑर्गेनाइजेशन की हैं उसके साथ एम्प्लॉय मैच करे और विद इन दैट बाउंड्री, विद इन दोज बाउंड्री लाइंस उसको रहना चाहिए। जो रूल्स एंड रेगुलेशंस में है, जो मना है वो उसको नहीं करना चाहिए,
जो अलाउड है वो करना चाहिए और जिस चीज़ के लिए वो हायर किया गया वो करना चाहिए। तो डिसिप्लिन के बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं। अब हमने उसमें देखा कि फैक्टर्स कौन कौन से कंसिडर करने जब डिसिप्लिन कर रहे हैं, और फिर इसमें हमने देखा कि कौन कौन से ज़्यादा डिसिप्लिनरी इश्यूज हो सकते हैं। और उसमें क्या था, फर्स्ट ऑफ ऑल अटेंडेंस, कि बहुत सारे लोग अटेंडेंस के रिकॉर्ड को मिसयूज करते हैं। आजकल बायोमेट्रिक आप सिस्टम लगा देते हैं जिसमें फिंगरप्रिंटिंग होती है, लेकिन पीपल इवन नो दैट हाउ टू डॉज दोज बायोमेट्रिक सिस्टम्स। लेकिन अगर आप लेट आ रहे हैं और टाइम आप गलत लिख रहे हैं, जल्दी जा रहे हैं और टाइम गलत लिख रहे हैं, तो दीज आर अ फ्यू थिंग्स जो अटेंडेंस की डिसिप्लिनरी प्रॉब्लम में आती। देन ऑन द जॉब बिहेवियर्स, कि आप अपने एम्प्लॉयज के साथ, को वर्कर के साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं, वो भी एक बड़ा डिसिप्लिनरी इशू हो सकता है। फिर हमने बात की डिसऑनेस्टी, कि आप ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं छुपा रहे, या कोई कंपेटिटर की इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास है जो ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान पहुंचा सकती है तो वो छुपा रहे हैं, तो डिसऑनेस्टी भी एक डिसिप्लिनरी इशू हो सकता है। फिर आउटसाइड एक्टिविटीज हमने बात की कि मे बी सम एम्प्लॉय इज perfectly fine within the organization, but जैसे ही outside the organization जाता है, he has got certain dubious activities, certain wrong activities, जो eventually हो सकता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान दें, तो उसका भी ख्याल करना जो ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। Then we talked about a very important point that we should make these disciplinary actions progressive. Progressive का हमारा क्या मतलब था कि you should start with less severe things, less severe warnings to the more severe warnings। जैसे हमने डिस्कस किया कि अगर कोई लेट आ रहा है, सबसे पहले ask that person a problem, किस वजह से वो लेट आ रहा है या किस वजह से डिसिप्लिनरी इशू आ रहे हैं। अगर तो वो इश्यूज वाकई कोई जेन्युइन है तो उसको काउंसल करें, उसकी हेल्प करें। अगर वो इश्यूज ऐसे हैं जो वाकई एम्प्लॉय की वजह से आ रहे हैं और उसका हैबिचुअल है या प्रॉब्लम है, तो देन यू गिव हिम अ वर्बल वार्निंग। वर्बल से ठीक नहीं होता तो देन यू कैन गिव हिम अ रिटन वार्निंग, वो फॉर्मलाइज हो जाएगा, उसकी फाइल में लग जाएगा। अगर उससे भी चीजें ठीक नहीं हो रही, देन यू कैन सस्पेंड दैट पर्सन, विच इज अ थर्ड लेवल, बट यू आर एक्चुअली मेकिंग इट प्रोग्रेसिव। यू स्टार्टेड विद अ लेस वेयर, विच इज अ वर्बल वार्निंग, एंड नाउ यू आर मूविंग ऑन टू द रिटन वार्निंग एंड देन टू द सस्पेंशन। और अगर सस्पेंशन से भी, अनपेड या पेड सस्पेंशन से भी उसको फर्क नहीं पड़ता, देन यू कैन थिंक एंड एक्ट about the dismissal, about firing that person, कि आप उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन से निकाल ही देते हैं, बिकॉज दैट पर्सन इज बिकमिंग अ डिसिप्लिनरी प्रॉब्लम फॉर यू, और आपने उसको बहुत सारे जो हैं वो वार्निंग्स भी दी हैं। और उसी के अंदर हमने हॉट स्टोव ओवन की बात की, हॉट स्टोव रूल की बात की, कि जब आपको ये पता हो कि एक दो वार्निंग्स मिल चुकी हैं, देन द एम्प्लॉय शुड बी वेरी केयरफुल, बिकॉज ही शुड नो दैट like the oven is already hot and he or she should not touch it, phrase यूज की हुई है। इसी तरह उसको पता होना चाहिए कि मुझे 2 वार्निंग्स मिल गई हैं, the next warning is going to be my मुझे सस्पेंड कर देंगे या फिर नेक्स्ट जो है डिसमिसल हो जाएगा। तो he should have the idea कि जो है हालात खराब है तो मैं उन हालात के साथ चलूं। Then why use employee handbook? हमने कहा कि employee handbook जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जो नए एम्प्लॉयज को स्पेशली एंड रनिंग एम्प्लॉयज को भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ताकि नए नए रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ उनको पता चलता रहे और डिसिप्लिनरी एक्शंस कोई ऐसे उन पे ना हो सकें, और उनकी जो नॉलेज है, उनकी जो इन्फॉर्मेशन है अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, इट शुड बी अपडेटेड। जो आज नया रूल बना है उनको पता होना चाहिए, हैंडबुक उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। देन वी टॉक्ड अबाउट द कंप्लेंट प्रोसीजर इन द एंड, कि कंप्लेंट प्रोसीजर आपका ऐसा हो कि जिसमें आपने हिरारकी वाइज स्टार्ट करना है। अगर आपको कोई कंप्लेन है ऑर्गेनाइजेशन से, लेट्स सपोज, तो आप क्या करेंगे, यू स्टार्ट फ्रॉम योर इमीडिएट सुपरवाइजर, आप इसको कंप्लेन करेंगे, और अगर ये सॉल्व नहीं कर रहा, देन यू आर गोइंग टू गो टू द नेक्स्ट लेवल, एंड देन यू आर गोइंग टू गो टू द नेक्स्ट लेवल, और फिर नेक्स्ट लेवल। You cannot directly bypass these two and move on to this person. You have to complain to this person first. तो इस तरह प्रोसीजर सेट किए हुए हैं कि किस तरीके से आपने एम्प्लॉयज को जो है वो कंप्लेन किस तरीके से करनी है अपने सुपीरियर्स को। तो ये आज का सारा लेक्चर था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। होपफुली अभी तक आपको समझ आ रहा है और आप क्विज़ेस के लिए और डिफरेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। अभी तक के लिए थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।